You are angry. But that is saying that every time your demand will be fulfilled, that is not also possible. That is also not possible. So it believed that in such circumstances, some restriction and agitation were justified. There should be restriction on your demand and your agitations. Restriction. किसी भी तरह का agitation होना गलत बात है. When India, when a country is in a tight position, so एक one part is that this is also could be a question for you in the examination, final examination. Demolition in Turkman Gate area, it's a all type of boxes. दोस्तों जब भी कोई boxes आता है ना, that is very much important. पहले भी I told you earlier also, that particular part is very important. That particular part is a itself a question, right? So what happened? What do you know about demolition of Turkman Gate? What happened there? क्या हुआ था that time? Sanjay Gandhi was very. I told you earlier also, Sanjay Gandhi, the son of Mrs. Indira Gandhi, youngest son. Eldest is Mr. Rajiv Gandhi, and the youngest was Sanjay Gandhi. तो संजय गांधी इन तुर्कमान गेट के पास बहुत सा झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी. Lot of chawls were there. He demolished. सपाट कर दी थी जमीन को. लोगों को टाइम दे दिया गया था कि अपने अपने बर्तने उठा लो, and we are going to evacuate you. So what happened? Emergency witnessed large scale displacement. Displacement means किसी को एक जगह से दूसरी जगह के में छोड़ देना, उसको प्लेस दूसरी जगह पे प्लेस कर देना, अपने घर से बेदखल कर देना. Displacement, right? Of people living in Delhi, poorer localities. पुअरर लोकेलिटीज, राइट? जो पुअरर थे, जो गरीब थे, जो दूसरे जगह पे रहते थे, तो उनको वो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया. द झुग्गी झोपड़ीज, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, झुग्गी झोपड़ी, right, were forcibly relocated their barren areas across the river Yamuna. यमुना रिवर के दूसरी तरफ, दूसरे पार उनको शिफ्ट किया गया. One such affected area was colonies in तुर्कमान गेट. तुर्कमान गेट के पास एक कॉलोनी थी, उसे झुग्गी झोपड़ी एरिया कहा जाता है. वहां पे गरीब घर के लोग रहा करते थे. अब इसने एक और बात ध्यान से सुनो. He used to, our Indian population is very high at that time, also second largest population in the world. So Sanjay Gandhi wanted to control the population. So he said basically the poorer people, they have got large population, large children, large number of children. So उन्हें क्या किया कि उनको स्टेरिलाइजेशन करना. I think स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? फैमिली प्लानिंग होती है, तो उनको फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया जाता है. They are fit and fine, but they will not be able to produce the children. राइट? सो उन्होंने क्या किया? फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया, स्टेरिलाइज कर दिया. कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पोस्ट पे नहीं था. He was, that's why I'm saying, he has no post. He has only one post, that he is the son of Mrs. Indira Gandhi. That's all. There's no only one post. That he is the son of Mrs. Indira Gandhi, and you don't know what he did. He did thousands and thousands, lakhs and lakhs people were sterilized, and the people who they were sterilized who were not married even. अब क्या हुआ? फोर्सफुली जो कुछ लोग उनको स्टेलाइज करते थे ना, उनको जमीन दी जाती थी. कुछ लोग भाग गए वहां से. they ran away from there. I will read for you. The झुग्गी झोपड़ी area were demolished, तोड़ दिया गया उनको. Hundreds of people of this area were forcibly sterilized. This was done by Mr. Sanjay Gandhi, right? And however, many people escaped. Listen to me very carefully. However, many people were escaped sterilization simply because they were able to motivate other people to get themselves sterilized. दूसरों कहते तुमको ये मिलेगा, तुमको ये पैसे, इतने पैसे मिलेंगे. अब एक बंदे को यदि सपोज कोई कहे कि तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, तो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा ले, उसके घर में दाना पानी नहीं है, तो मुझे लगता है वो करवा लेगा 5,000-7,000 के अंदर, राइट? लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि होने वाला क्या है इससे.
उसे कहेगा 2-3 दिन तू थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा, बाकी उसके बाद ठीक हो, 7,000 रुपए तुझे तुझको मिलेंगे, तुझे और क्या चाहिए? He will do it. Right. So many people, they were able to motivate other people to get themselves sterilized and were rewarded by grant of title to a piece of land. उनको जमीनें दी जाती थी, जिसने 100 करोड़ लोगों को मोटिवेट किया कि भैया तुम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवा लो, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे, तो दूसरों को मोटिवेट करना, तो उनको प्राइज मनी दी जाती थी, प्लस उनको छोटे से जमीन का टुकड़ा भी दिया जाता था। एंड उस वक्त के जमीन को टुकड़ा किसी को मिलना, it was a great reward for them. So what he did, thus, आप ध्यान से सुनना, while some people became victims of government sponsored action, some people managed to victimize others. दूसरों को victimize कर दिया. Why? In their desire to legally secure a piece of land. बात समझ में आ गई? दूसरों की जमीन को लेने के लिए they will get the zameen, they will get a piece of land. He destroyed the other's life. Sorry? हाँ देते थे लैंड, लेकिन जो जिनको स्पेशलाइजेशन होता थोड़े पैसे दे दिया जाता था उनको, जिनको जो मोटिवेट करके लाते थे दूसरों को, 200-300 लोगों को वोट, तो उनको एक पीस ऑफ लैंड भी दिया जाता था। तो दूसरे लोग इस काम में ही लग गए कि कितने लोगों को स्टाइलाइज किया जाए। वो कर तो एक आदमी को कुछ पता नहीं, वो कर तो लेता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था इसके बाद होने वाला क्या है। He is unable, he is fit and fine. He can do the marriage also, everything is okay, but he will not be able to produce children. That's all. Right. So some become government sponsors and piece of land which would safeguard from arbitrary displacement. उसको समझा दिया, उसको जमीन दे दी जाती और उसको डिस्प्लेसमेंट से भी बचा लिया जाता। That's why this demolition of Turkoman Gate is still very live. आज भी ये घटना जिंदा है। पता क्यों? ये बार बार मोदी, कई बार आपने देखा होगा, he used to take it emergency during in the parliament, सभा पार्लियामेंट पे बात करता है इमरजेंसी की बात। This is due to this. लोगों को 1,000 people were jailed and they were sterilized. Fine. So now, but thus are coming on the next 115 page. The CPI felt that agitation led by JP were mainly by the middle classes who were opposed to the radical policies in the Congress party. After the emergency, the CPI felt that the assessment was mistaken and it was an error to suspend the emergency. Suspend the to have the support to the emergency. पहले CPI ने बहुत support किया, Mrs. Indira Gandhi को भी support किया. Yes, we need emergency because there is internal disturbance, there is a threat to internal security also. That is the need that it's need of a time that we should have the emergency during this era. But after some time, they were rectified that we were mistaken. हम गलती पे थे, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। कौन पार्टी थी? सीपीआई। ये कुड बी 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? विच पार्टी सपोर्टेड कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी? कौन सी पार्टी ने सपोर्ट किया? सीपीआई ने सपोर्ट किया। राइट? क्यों सपोर्ट किया मैंने आपको बताया। राइट? एनी प्रॉब्लम विच यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड? Fine. On the other hand, the critics of emergency argued that every since the freedom movement, Indian politics had a history of popular struggle. JP means Jayaprakash Narayan. JP and many other opposition leaders felt that in democracy, people had the right to publicly protest against the government. People can protest against the government, that is a fundamental right. या इमरजेंसी के अंदर तो फंडामेंटल राइट तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बट Supreme Court and Ray and Mrs. Indira Gandhi, that other people, they said you can amend the constitution also according to your need. According to your need. If the need is there, the time is there, you can change the
change the constitution, amend, not change, amend the constitution also. I'm sorry, amend the constitution also. Right. So the Bihar and Gujarat agitation were mostly peaceful and non-violent. गुजरात देखो थोड़ा बहुत यार इतने करोड़ लोगों की जनसंख्या थोड़ा बहुत तो हो जाता है एजुकेशन में थोड़ा बहुत violence there is possibility but more and more the Bihar protest and Gujarat protest that was absolutely non-violent right and non-violent those who were arrested were never tried by anti-national activity मैं तुम केस तो दर्ज करो कि इसने क्या किया है they were not nothing was there कि they were indulged in national anti-national activity किसी के ऊपर कोई केस नहीं है कि इन्होंने देश विरुद्ध कोई काम किया है किया ही नहीं क्या किया था हम तो देश दिस नॉट अ देश विरुद्ध काम किए भैया आई एम अगेंस्ट यू या suppose you are in a ministry and some people are against you yeah they are not against you they are against the decisions इंडिविजुअली आप अपने किसी के भी अगेंस्ट नहीं होते हो उनके डिसीजन के अगेंस्ट होते हो कोई केस ही नहीं बना उनके ऊपर मैं तुम्हारे सोच के अगेंस्ट हूं दिस इज नॉट अ क्राइम यार दिस इज नॉट अ क्राइम हो सकता है कल तुम कहोगे सर हम इस बात को नहीं मानते जो आप कह रहे पॉसिबल नहीं भैया दिस इज योर इंडिविजुअल थिंकिंग हाउ कैन आई रिजेक्ट इट बट आई हैव टू थिंक दैट ऑल्सो कि तुम क्या कह रहे हो राइट कोई चीज में समझ नहीं आ रही तो यू हैव गॉट ऑल राइट टू आस्क मी इफ माय सब्जेक्ट रिलेटेड इज देयर so that is not a crime so it is written over here non-violent those who were arrested were never tried to any international activity no cases were registered against most of the detainees देखो एक होता है प्रिजनर्स ध्यान सुनो कुछ की चीजें मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है मुझको तो एक होते हैं detainees एक होता है prisoners what is the difference between prisoners and detainees तो detainees भी तो जेल के अंदर ही होते हैं कमन नहीं प्रूफ भी हो गया तो प्रूफ होगा तभी तो अंदर है ना दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल दे आर द पॉलिटिकल पीपल डेटिन्यूज होता है डिटेन उनको डिटेन किया गया है उन्हें जेल नहीं डाला गया उनको किसी जगह पे रोका गया है बात समझ में आई तुम कहोगे जिंदाबाद मुर्दाबाद कल खुशी हाथ में धंधा लेके जा रही झंडा लेके पूरी गर्ल्स उनके साथ है जिंदाबाद मुर्दाबाद राइट कोई किसी ने तुम्हें डिटेन कर दिया तुम नहीं जा सकते आगे यू आर नॉट अ प्रिजनर यू आर डिटेन्ड डिटेन माने रोकना डिटेन से बना है डेटिनीज यू गॉट इट हम इसे कहेंगे टोटल पूरा नाम है इसका पॉलिटिकल डेटिनीज नहीं है समझ आया कल सपोज कल अभी कुछ दिन पहले बिहार में ना या उसमें केरल में मोदी के अगेंस्ट वो निकला था और दे वांट टू कम टू द असेंबली केरल के कुछ लोग दूसरे लोग असेंबली हॉल में आना चाहते थे असेंबली तक आना चाहते थे तो क्या उनके असेंबली तक आने दिया जाएगा When Modi was crossing, Prime Minister is crossing, क्या उनको आने दिया जाएगा हो सकता पॉसिबल ही नहीं हो सकता कुछ भी हो सकता है तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा बैरिकेड लगा दी जाती है पुलिस आके खड़ी हो जाती है राइट उन्हें वहीं रोक दिया जाता है वहीं पर तुम खड़े रहो चाहे सारा दिन खड़े रहो और जब ज्यादा करेंगे तो उठा के उसे उन्हें एक बैरक में ले जाया जाएगा दे आर मे बी प्रिजनर बट दे आर नॉट प्रिजनर दे आर डेटिन्यूज उन्होंने उनको डिटेन किया गया तुम इससे आगे नहीं जाओगे वास्तव में प्रिजनर तो है ही कैदी वो तो एक्सेप्ट उनको सजा हुई है कोर्ट ने एक और ले लो कोर्ट ने प्रिजनर्स को सजा दी है कि इसको 3 साल की सजा है इसको 5 साल की सजा है इसको 6 साल की सजा है या इसको 2 महीने की सजा है बट डेटिन्यूज दे डोंट हैव एनी जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट देम उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं दर्ज हुआ रोकने के लिए रोका गया बस कि तुम रुके रहो चाहे वो 3 महीने के लिए चाहे वो 4 महीने के लिए चाहे पूरी इमरजेंसी के लिए तुम बाहर नहीं जाओगे पर तुम
तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने कोई केस दर्ज नहीं है तुम पे। बात समझ में आ गई? सरकार इज अफ्रेड ऑफ यू, सीधी सादी भाषा। सरकार तुमसे डरी हुई है कि इसलिए तुमको रोक दिया गया है, डिटेन करना। अंडरस्टैंड? फाइन। Please for any international activities, no cases were registered against most of the detainees. यहाँ पे ये नहीं लिखा prisoners, यहाँ पे detainees लिखा हुआ है। The Home Ministry, which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country, also did not express any concern about the law and other situation in the country. Home Ministry ने भी कह दिया कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो हम रोक लेंगे, डोंट वरी, बहुत ज्यादा कोई कंडीशन खराब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने इमरजेंसी अपने लिए लगाया है। होम मिनिस्ट्री कह रही है कि तो बिल्कुल बात तो ठीक है, मैं ऑल इन ऑल द सिचुएशन इज पीसफुल। अब मिसेस इंदिरा गांधी को मानने वाले ये कहते हैं कि ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन द कंडीशन वाज पीसफुल। उससे डर के मारे, जो भी हो, right? There is enough routine passed, and if some education had overstepped their limits, the government had enough routine passed to deal with this type of situation. गवर्नमेंट के पास बहुत पावर था कि इन सिचुएशन से डील किया जा सके। There was no need to suspend democratic function and use draconian measures like the emergency. For that, the threat was not to unity and integrity of the country, but to the ruling party. मैंने अभी आपको कहा कि इसका मतलब क्या था? होम मिनिस्टर ने कह दिया क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने, पुलिस ने कह दिया सर हम संभाल लेंगे, तो क्यों इमरजेंसी लगाया गया? फिर सिर्फ ये कि देयर वाज एजिटेशन? नो, because the threat was not to the unity and integrity. थ्रेट यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए नहीं था, इट वॉज ड्यू टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ। इस कारण अब सारा का सारा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई। इमरजेंसी क्यों लगाई गई? इंटरनली कोई थ्रेट नहीं था, एक्सटर्नली तो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, बट द पार्टी वाज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। Clear? And Mrs. Indira Gandhi took it very personally. मैं भी कई बार कहता हूँ यार इसको पर्सनली मत लो, पर्सनली मत लो, पर्सनली मत लो, अपने ऊपर मत लो। But she took it as a prime minister. मुझको हरा दिया गया, कोर्ट मेरे अगेंस्ट आ गया, लोग तो मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे। And she was apprehensive, डरी हुई थी वो, हुआ कुछ नहीं था, डरी हुई थी। इस डर के कारण इमरजेंसी लगाई। Am I clear? Fine. What happened during emergency? The actual implementation of the emergency is another contention issue, contentious issue, एक और बड़ा debateful aspect. क्यों emergency को लिया गया? Did the government misuse its emergency pass? क्या गवर्नमेंट ने अपने इमरजेंसी पास को मिसयूज किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। Right? Where they excess and abuse of authority, authority जो लोग highest post पे थे, जो मिसेस इंदिरा गांधी के करीब थे, as his son, her son, क्या उन्होंने अपने पावर को मिसयूज किया है? बिल्कुल किया है। Right? The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order. गवर्नमेंट का क्या सोच थी कि लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने इमरजेंसी को लगाया है। Right? So, order, restore an efficiency. What do you mean by restore efficiency? आपकी जो efficiency, काम करने की जो क्षमता है, your ability to do work, to restore that ability, we had put the emergency. And above all, implementation or implement the pro-poor welfare program. जो गरीबों के उसने दिया था ना, गरीबी हटाओ, तो pro-poor welfare program. For the purpose, the government led by Indira Gandhi announced a 20-point program. 20 बहुत फेमस हुआ था अपने जमाने में
20-point power program. 20-point program and declare the determination to implement this program. 20 सूत्रीय कार्यक्रम, हिंदी में उसको 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते थे. So this was very much dear to Mrs. Indira Gandhi. 20 points थे जिनमें गरीबों के लिए उत्थान का उन्होंने, they have a lot of program for the poor जो गरीब लोग थे उनके उत्थान के लिए काम 20 points program बनाए गए थे. Review of the agriculture wages, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स भी काम करें. इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इरेडिकेशन मतलब बॉन्डेड का मतलब ये सब सोच. क्वेश्चन इससे कि 20 प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रखा गया था, क्या क्या प्रोग्राम थे उस 20 सूत्री पॉइंट्स में, क्या क्या मेन बातें थी मिसेज इंदिरा गांधी के. तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या था? That is determination to implement this, and that is 20 program के अंदर लैंड रिफॉर्म्स. सबसे सबसे लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है जानते हो? मैं छोटी सी आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं. लैंड रिफॉर्म सबसे पहले बंगाल में शुरू किया गया था. बंगाल, बंगाल में शुरू किया था. तो वहां पे बंगाल में क्या हुआ था कि कईयों के पास इतनी जमीनें थी, यहाँ पर तो 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा. कईयों के पास 70 गांव थे. डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर, he was a holding of 125 villages. Can you believe it? 125 गांव उनके अपने थे, सारी जमीनें उनकी थी. डॉक्टर राजा राममोहन रॉय, 130 villages. ऐसे ऐसे लोग थे वहां पे. तो उन्होंने मिसेज इंदिरा गांधी के इतनी जमीनों की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म लगाना तो बंगाल में लगाओ. तो लगा दिया उन्होंने और सचमुच बहुत ठीक रहा. लैंड रिफॉर्म्स बंगाल में एक क्रांति लेके आया. वहां पे कि आप वहां पे जमीन से किसी को बेदखल नहीं कर सकते. यदि वो किसान आपके वहां पे काम करता है तो आप उसे, यू कैन नॉट विदाउट हिम, उसे हटा नहीं सकते हो. लैंड रिफॉर्म्स, आपकी जमीनें बांध दी गई. सो दैट इज वन इज लैंड रिफॉर्म. लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिनके पास बहुत जमीनें थी उनको उन लोगों में बांट दिया गया उनसे लेकर जिनके पास जमीन नहीं थी. देना पड़ेगा भैया. हाउ कैन यू से नो? उनको देखो ना, किससे जमीन ले लेते थे. तुम अचानक कहा कि भाई तुम्हारे पास जमीनों के कागजात देखो, जमीनों के कागज देखो, तुम्हारे पास तो 100-300 एकड़ की जमीन है, क्या करके? नहीं, पहले से खरीद रखी थी उनको. जो खरीद रखी थी तुम नहीं खरीद सकते हो ऐसे. थोड़ा बहुत दे दिया होगा, जमीन दे दी होगी. अभी भी ऐसा होता है, लैंड ले लेते हैं. अब तो ठीक है, पंजाब हरियाणा में एक्सेप्टेबल, तो उनको उतनी जमीन के पैसे दे दिए थे, पर वहां पर नहीं होता ऐसा. वहां पर इतना पैसा नहीं मिलता. राइट. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया. रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेस, एग्रीकल्चर वेजेस जो घर पट्टे पे काम करते हैं उनको, या दिहाड़ीदार मजदूर जो एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं उनके वेजेस को रिव्यू किया गया. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सब 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, एक के बाद एक अंडरलाइन कर लेना. राइट. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के अंदर लाया गया. इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर थे उनको खत्म किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन द इनिशियल मंथ्स after the declaration of emergency, the urban middle class were generally happy. लोग बड़े खुश हुए, चलो लग गया इमरजेंसी, होना चाहिए, क्योंकि उनका काम नहीं बन रहा था. People were not doing the job. So and over the fact that the agitations came to an end. हर 10 दिन के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद. आज बैंक क्लोज है, बैंक में हड़ताल है. कल आज शॉपकीपर्स क्लोज हैं, दुकानों की हड़ताल है, बसों की हड़ताल है, यहाँ हड़ताल है, वहां हड़ताल. लोग तंग आ गए थे. कौन तंग आए थे? मिडिल क्लास फैमिली तंग आ गई थी. And in the poor and the rural people were also expecting effectively implementation welfare program which the government was promising. और गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था
जो गरीब लोग थे, the poor people were expecting that government will fulfill their whatever the promise they have done before the poor people. लोगों के से जो प्रॉमिस की गई है उसको वो पूरा करेंगे. The different section of the society, ये आपका क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन. So different section of society had different expectation from emergency. अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग ये सोचते थे कि कैसे यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन, अलग सोसाइटी, अलग किस्म के लोग, पर उन सबको ये पता था कि इमरजेंसी लगी है तो इट इज फॉर द गुडनेस ऑफ फॉर देम. ये अच्छी बात है उनके लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के, रूरल बैकग्राउंड के लिए, कि उनको अब न्याय मिलेगा. ओके, इमरजेंसी एंड ऑल्सो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट इट. अब देखो एक छोटा सा कार्टून है, जून के महीने में हुआ था, नहीं, दिसंबर आ चुका था, 31 दिसंबर लग रहा था, 1975 से 76 आ गया. ये जो 75 76 के ये बच्चा है, चश्मा पहना हुआ, राइट, बच्चा है, मुंह में उसके बिल्कुल अभी पैदा हुआ है वो, राइट, वो है ऊपर लिखा हुआ देखो, हैप्पी न्यू ईयर 1976. प्लान के अंदर वो बैठा हुआ है, और वो जो उसका जो पॉलिटिशियन है, इज अ पॉलिटिशियन, नीचे लिखा हुआ है इमरजेंसी, ऊपर क्या लिखता है, नो 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 नो, नॉट येट, बाहर मत निकलो, इट इज स्टिल रिस्की फॉर यू टू गो ऑन योर ओन. तुम्हें अभी खड़ा होना नहीं आता है. 76 को कह रहा है ये, अभी तुम पैदा ही हुए हो, अभी तुम बाहर मत निकलो वहां से, बच्चों की गाड़ी से, प्लान से गिर जाओगे, राइट. तो दिस वाज 76, राइट. क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी पॉइंट आउट, बस आई थिंक ये बंद हो चुका है 5, आज 5 o'clock, ये कल करेंगे. हो गया ना? अच्छा, हाँ जी. एनी क्वेश्चन फॉर यू? कल क्या कुछ पढ़े थे? हाँ, क्या कॉपी लाई हो, कॉपी वगैरह